Hello students, I Lovely Raj. Welcome you all on my YouTube channel e-learning. Today we'll talk about the 7th chapter of Language and Literature BA1 Semester 1 Playing the English Gentleman, written by Mohandas Karamchand Gandhi, popularly known as Mahatma Gandhi, Gandhiji, Bapu, Bapuji. And this essay has been taken from Mahatma Gandhi's autobiography, The Story of My Experiments with Truth. And in this essay, he narrates his experiences when he was in London. So, let's start the chapter. About the author and the essay. Mohandas Karamchand Gandhi is popularly known variously as Gandhiji, Bapu, Mahatma Gandhi. He was a great leader of the freedom struggle of India. Assuming the leadership of the Indian National Congress in 1921, Gandhi led nationwide campaigns for easing poverty, expanding women's rights, building religious and ethnic amity, ending untouchability, but above all for achieving Swaraj or self-rule. Gandhiji dedicated his life to the wider purpose of discovering truth or Satya. He called his autobiography The Story of My Experiments with Truth. My faith in vegetarianism grew on me from day to day. मेरा जो फेथ था वेजिटेरियनिज्म में डे टू डे बढ़ता जा रहा था. सॉल्ट्स बुक whetted my appetite for diabetic studies. सॉल्ट की जो बुक थी डायबिटिक स्टडीज़ पे मेरा उसमें भी बहुत इंटरेस्ट बढ़ रहा था. आई वेंट इन फॉर ऑल बुक्स अवेलेबल ऑन वेजिटेरियनिज्म एंड रेड देम. जितनी भी वेजिटेरियनिज्म पे बुक थी मैंने सब ली और उनको पढ़ा. वन ऑफ दीज Howard Williams, The Ethics of Diet, was the autobiographical history of literature of humane dietetics from the earliest period to the present day. Howard Williams की जो बुक थी The Ethics of Diet, it was a biographical history of literature. I read that book too. It tried to make out that all philosophers and prophets from Pythagoras and Jesus down those of the present day were vegetarianism. उस बुक से मुझे मेरी ये ऑब्जर्वेशन रही कि जितने भी फिलोसफर्स और प्रॉफिट्स रहे हैं पाइथागोरस से लेकर जीसस तक और टिल टुडे सब लोग वेजिटेरियन थे. डॉक्टर एना किंग्सफोर्ड्स द परफेक्ट वे इन डाइट was also an attractive book. Dr. Allinson's writing on health and hygiene were likewise very helpful. He advocated a curative system based on regulation of the dietary of patients. इस बुक में डॉक्टर ने बताया कि जो पेशेंट्स हैं अगर उनकी डाइट को रेगुलेट किया जाए तो इट कैन हेल्प देम इन ट्रीटिंग देयर डिजीज़. Himself a vegetarian, he prescribed for his patients also a strictly vegetarian diet. क्योंकि वो खुद वेजिटेरियन थे तो वो पेशेंट्स के लिए भी वेजिटेरियन डाइट ही उन्होंने प्रिस्क्राइब की हुई थी. The result of reading books on vegetarianism was that experiments with my diet came to take an important place in my life.
वेजिटेरियनिज़म पे बुक्स पढ़ना और अपनी डाइट के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना, ये मेरी लाइफ का उस वक्त एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया था। हेल्थ वॉज द प्रिंसिपल कंसिडरेशन ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स टू बिगिन विथ, और उन सब एक्सपेरिमेंट्स का जो प्रिंसिपल कंसिडरेशन था वो था मेरी हेल्थ। बट लेटर ऑन रिलीजन बिकेम द सुप्रीम मोटिव, बट बाद में उसके साथ रिलीजन भी अटैच हो गया। मीनवाइल माई फ्रेंड हैड नॉट सीज टू वरी अबाउट मी, तब तक मेरा जो फ्रेंड था उसने मेरी फिक्र करना नहीं छोड़ा। His love for me led him to think that if I persisted in my objections to meat eating, I should not only develop a weak constitution but should remain a duffer because I should never feel at home in English society. वो मेरे लिए बहुत कंसर्न था, तो उसका ऐसा सोचना था कि अगर मेरा जो ये वेजिटेरियनिज़म है इसमें इंटरेस्ट बढ़ता रहा, अगर मैं वेजिटेरियन ही रहा तो हो सकता है इससे ना केवल मेरा जो फिज़िकल स्ट्रेंथ जो है कम होगी, मुझ में वीकनेस आएगी, इसके साथ साथ मैं एक डफर कहलाऊँगा। क्यों? क्योंकि वेजिटेरियन रहकर मैं कभी भी इंग्लिश सोसाइटी में एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। When he came to know that I had begun to interest myself in books on vegetarianism, he was afraid lest these studies should muddle my head, that I should fritter my life away in experiments, forgetting my own work and become a crank. उसे जब ये पता लगा कि मेरा जो वेजिटेरियनिज़म की जो बुक्स हैं उनमें इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो उसे ये डर था कि मेरा जो ये इंटरेस्ट है वेजिटेरियनिज़म में, एक कहीं ये मेरा जो माइंड है मॉडल कंफ्यूज ना कर दे, एंड दैट आई शुड फ्रिटर अवे, और इसमें मैं इन एक्सपेरिमेंट्स में अपनी पूरी लाइफ, टाइम, एनर्जी सब वेस्ट कर रहा था और अपना मेन काम भूल रहा था, एंड बिकम अ क्रैंक, और एक क्रैंक वियर्ड सन की इंसान बन गया था वेजिटेरियनिज्म को लेकर। He therefore made one last effort to reform me. तो उसने एक लास्ट एफर्ट किया मुझे चेंज करने का। He one day invited me to go to the theatre. एक दिन उसने थिएटर जाने के लिए मुझे इनवाइट किया। Before the play, we were to dine together at the Holborn restaurant. To me, a palatial palace and the first big restaurant I had been to since leaving the Victoria Hotel. थिएटर जाने से पहले हमने डिसाइड किया कि हम डिनर जो है साथ में लेंगे होलबोर्न रेस्टोरेंट में। होलबोर्न रेस्टोरेंट मेरे लाइफ का एक प्लेशल, एक ग्रैंड और बड़ा रेस्टोरेंट, पहला बड़ा रेस्टोरेंट था। जब से मैंने विक्टोरिया होटल छोड़ा था उसके बाद से द स्टे एट होटल हैड स्क्योरली बीन अ हेल्पफुल एक्सपीरियंस, फॉर आई हैड नॉट लिव्ड देयर विद माई विट्स अबाउट मी। मेरे लिए उस होटल का जो एक्सपीरियंस था वो कोई बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग नहीं रहा। क्यों? बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट इन माई कंट्रोल दैट टाइम। द फ्रेंड हैड प्लान टू टेक मी टू दिस रेस्टोरेंट, एविडेंटली imagining that modesty would forbid my questions. मेरे फ्रेंड की प्लानिंग इस रेस्टोरेंट में लाने की ये थी, उसे ऐसा लगा था कि मोडेस्टी
जो है हो सकता है मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछने से रोक ले, मैं हेजिटेट करूं कुछ भी क्वेश्चन पूछने से। एंड इट वॉज अ वेरी बिग कंपनी ऑफ डिनर्स, and it was a very big company of dinners, in the midst of which my friend and I sat sharing the table between us। हम लोग उस होटल में सबके बीच में एक टेबल हमने शेयर किया। The first course was soup। सबसे पहले सूप आया। I wondered what it might be made of, but dared not ask the friend about it। मैं बहुत हैरान था, परेशान था कि ये किसका बना होगा, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई अपने फ्रेंड से पूछने की। I therefore summoned the waiter। तो मैंने वेटर को बुलाया। My friend saw the movement and sternly asked across the table, what's the matter? मेरे फ्रेंड ने मेरी मूवमेंट देखी और मुझे थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर कहा, क्या बात है? With considerable hesitation, I told him that I wanted to inquire if the soup was a vegetable soup। थोड़ा सा हेजिटेट करते हुए मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये सूप है क्या वेजिटेबल सूप है? You are too clumsy for decent society, he passionately explained। उसने एकदम से मुझे कहा, You are too clumsy for decent society। तुम एक सभ्य समाज के लायक नहीं हो। If you cannot behave yourself, you had better go feed in some other restaurant and await me outside। अगर तुम सही से बिहेव नहीं कर सकते तो बेटर है तुम यहाँ से चले जाओ, बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाओ और मेरा वहाँ पर वेट करना। दिस डिलाइटेड मी। आउट आई वेंट और मैं खुश हो गया और बाहर चला गया। देयर वॉज अ वेजिटेरियन रेस्टोरेंट क्लोज बाय बट इट वॉज क्लोज्ड। पास में ही एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था लेकिन वो भी बंद हो चुका था। सो आई वेंट विदाउट फूड दैट नाइट। तो उस रात मैं बिना खाना खाए ही रहा। I accompanied my friend to the theatre, but he never said a word about the scene I had created। उसके बाद मैं अपने फ्रेंड के साथ थिएटर गया, लेकिन उसने एक बार भी कोई बात नहीं की वो उस सीन के लिए जो मैंने अभी होटल में क्रिएट किया था। On my part of course there was nothing to say। और मेरे पार्ट पे भी कुछ कहने को नहीं था। That was the last friendly tussle we had। It did not affect our relations in the least। ये हमारी एक लास्ट फ्रेंडली टसल, फ्रेंडली आर्ग्यूमेंट थी, लेकिन इस आर्ग्यूमेंट ने हमारे रिलेशन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं किया। I could see and appreciate the love by which all my friends' efforts were actuated, and my respect for him was all the greater on account of our differences in thought and action। I appreciate the love and concern of my friend, and I really respect him। हमारे थॉट्स और एक्शन में बहुत डिफरेंस था, बट इवन देन मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता था। बट आई डिसाइडेड दैट आई शुड पुट हिम टू ईज। बट मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं उसे कुछ रिलैक्स करूँगा। दैट आई शुड एश्योर हिम दैट आई वुड बी क्लमजी नो मोर। और मैंने उसे एश्योर किया कि अब मैं क्लमजी नहीं रहूँगा, अब मैं अनसिविलाइज्ड बिहेव नहीं करूँगा, बट
ट्राई टू बिकम पॉलिश्ड और एक सिविलाइज्ड पर्सन बनने की कोशिश करूँगा जो इंग्लिश सोसाइटी में फिट हो सके, एंड मेकअप फॉर माई vegetarianism by cultivating other accomplishments which fitted one for polite society। तो मैंने जो मेरा वेजिटेरियनिज़म था उसको कॉम्पनसेट करने के लिए और दूसरे ऐसे स्किल्स को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया था ताकि मैं पोलाइट और सभ्य सोसाइटी में, इंग्लिश सोसाइटी में एडजस्ट हो सकूं। एंड फॉर दिस पर्पस आई अंडरटुक द ऑल टू इम्पॉसिबल टास्क ऑफ बिकमिंग एन इंग्लिश जेंटलमैन। तो इसी पर्पस के साथ मैंने हर वो इम्पॉसिबल टास्क, असंभव काम करना शुरू कर दिया था खुद को इंग्लिश जेंटलमैन बनाने के लिए। द क्लोथ्स आफ्टर द बॉम्बे कट that I was wearing were, I thought, unsuitable for English society and got new ones at the Army and Navy store। तो मैंने सबसे पहले अपना इंडियन सूट छोड़ा। मुझे लगता था कि ये जो सूट है दैट इज़ नॉट सुटेबल फॉर इंग्लिश सोसाइटी, एंड गॉट अनदर इंग्लिश सूट फ्रॉम आर्मी एंड नेवी स्टोर। I also went in a chimney pot hat costing 19 shilling, an excessive price in those days। उसके बाद मैंने एक चिमनी पोट हैट बाय किया जिसकी कॉस्ट 19 शिलिंग थी। उस टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्राइस था ये। नॉट कंटेंट विद दिस, लेकिन इससे भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। आई वेस्टेड 10 pounds on an evening suit made in Bond Street, the center of fashionable life in London। तो मैंने जो है 10 pounds का एक इवनिंग सूट बाय किया बॉन्ड स्ट्रीट से। बॉन्ड स्ट्रीट जो उस टाइम में लंदन में फैशनेबल लाइफ का हब माना जाता था। गॉट माई नोबल हार्टेड ब्रदर टू सेंड मी अ डबल वॉच चेन ऑफ गोल्ड। और अपने नोबल हार्टेड ब्रदर से, नेक दिल भाई से मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे गोल्ड डबल चेन वाली वॉच सेंड करे। It was not correct to wear a ready-made tie and I learned the art of tying one for myself। और उस वक्त जो है रेडीमेड टाई को पहनना भी अनसिविलाइज्ड माना जाता था, तो मैंने खुद से टाई नॉट लगाना सीखा। While in India, the mirror had been a luxury permitted on the days when the family barber gave me a shave। उस टाइम इंडिया में जो मिरर था उसे एक लग्जरी आइटम मानी जाती थी और वो हमें तभी देखने को मिलता था जब बार्बर हमारे घर आता था शेविंग के लिए। Here I wasted 10 minutes every day before a huge mirror watching himself arranging my tie and parting my hair in the correct fashion। बट यहाँ पर मैं हर रोज़ 10 मिनट्स वेस्ट करता था एक बड़े से मिरर के सामने, टाई पहनने, अपनी ड्रेस को मैनेज करने और अपने हेयर स्टाइल को करेक्ट फैशन में एडजस्ट करने में। My hair was by no means soft and everyday। It meant a regular struggle with the brush to keep it in position। मेरे जो हेयर इतने सॉफ्ट नहीं थे, इसलिए मुझे हर रोज़ ब्रशिंग में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था। Each time the hat was put off and on, the hand would automatically move towards the head to adjust the hair। जो हैट था वो
कभी ऊपर नीचे होता रहता था, तो मेरा हाथ जो था वो अपने आप अपने हेयर को एडजस्ट करने के लिए ऊपर चला जाता था. Not to mention the other civilized habits of the hand, every now and then operating for the same purpose when sitting in polished society. अभी बहुत सारी ऐसी डिटेल हैं जो मैंने मेंशन भी नहीं की है कि मेरे हाथों को ऐसी कौन कौन सी हैबिट्स को अडॉप्ट करना पड़ रहा था एक इंग्लिश पॉलिश्ड सोसाइटी में खुद को एडजस्ट करने के लिए. As if all this was not enough to make me look the thing, I directed my attention to other details that were supposed to go toward the making of an English gentleman. अब इतना ही काफ़ी नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी अटेंशन जो है वो और दूसरी डिटेल्स की तरफ फोकस करने की कोशिश की, जिससे मैं एक परफेक्ट इंग्लिश जेंटलमैन बन पाऊँ. आई वॉज टोल्ड इट वॉज नेसेसरी फॉर मी टू टेक लेसन्स इन डांसिंग, फ्रेंच एंड इलोक्यूशन. मुझे ये बताया गया कि इंग्लिश जेंटलमैन बनने के लिए मुझे जो है कुछ और लेसन्स भी लेने होंगे डांसिंग, फ्रेंच और इलोक्यूशन में. इलोक्यूशन इज़ हाउ टू स्पीक फ्लुएंट एंड इन civilized manner. French was not only the language of neighboring France, but it was the lingua franca of the continent over which I had a desire to travel. फ्रेंच जो थी वो यही नहीं कि नेबरिंग फ्रांस की लैंग्वेज थी, बल्कि वो पूरे कॉन्टिनेंट की लिंगुआ फ्रेंका मीन्स लैंग्वेज, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज थी पूरे कॉन्टिनेंट की जहाँ मुझे ट्रेवल करना था. आई डिसाइडेड टू टेक dancing lessons at a class and pay down £3 as fee for a term. उसके बाद मैंने डांसिंग लेसन्स लेने शुरू किए, वो क्लास ज्वाइन की और उसके लिए मैंने £3 एक टर्म की फ़ी पे की. I must have taken about 6 lessons in 3 weeks. मुझे 3 weeks में 6 lessons लेने होते थे. But it was beyond me to achieve anything like rhythmic motion. लेकिन rhythmic motion में मूव करना, डांस करना वो मेरे बस की बात नहीं थी. I could not follow the piano and hence found it impossible to keep time. क्योंकि मुझे पियानो और वेस्टर्न म्यूज़िक समझ नहीं आता था, तो मेरे लिए डांसिंग भी बहुत मुश्किल हो रहा था. What then was I to do? अब मैं क्या करता? The recluse in a fable kept a cat to keep off the rats, and then a cow to feed the cat with milk, and man to keep the cow, and so on. Recluse is a person who loves to remain alone and avoid people. तो एक फेबल में, फेबल इज़ अ शॉर्ट स्टोरी. फेबल में जैसे एक रिक्लूस को रैट्स को दूर भगाने के लिए कैट रखनी पड़ी, और उसके बाद कैट को मिल्क प्रोवाइड करने के लिए उसे काव रखना पड़ी, और उस काव को लुक आफ्टर करने के लिए उसे एक मैन रखना पड़ा, एंड सो ऑन. इसी तरह माई एम्बिशंस ऑल्सो ग्रू लाइक द फैमिली ऑफ द रिक्लूस. इसी तरह जो मेरी एम्बिशंस थी वो भी रिक्लूस की फैमिली की तरह बढ़ती चली जा रही थी. I thought I should learn to play the violin in order to cultivate an ear for western music. मैंने सोचा कि मुझे जो है
वायलिन प्ले करना सीख लेना चाहिए ताकि मुझे वेस्टर्न म्यूज़िक समझ आने लगे। सो आई इन्वेस्टेड £3 इन अ वायलिन समथिंग मोर इन फीस। तो मैंने £3 जो है वायलिन की फ़ी पे की। I sought a third teacher to give me lessons in elocution and paid him a preliminary fee of a guinea. उसके बाद मैंने थर्ड टीचर रखे एलोक्यूशन के लिए और उन्हें जो है प्रिलिमिनरी गिनी फ़ी भी पे की। He recommended Bell's Standard Elocutionist as the textbook, which I purchased, and I began with a speech of Pitts. उन्होंने मुझे बेल्स की एक टेक्स्ट बुक रिकमेंड की, मैंने वो परचेज की और जब मैंने पिट की स्पीच के साथ बिगिन किया, but Mr. Bell rang the bell of alarm in my ear and I awoke. So with that book, Mr. Bell कि उस बुक ने मेरे ईयर में एक अलार्म बेल बजाई और मैं जग गया। I had not to spend a lifetime in England. I said to myself, मैंने अपने आप से कहा कि मुझे पूरी लाइफ इंग्लैंड में स्पेंड नहीं करनी। What then was the use of learning elocution? तो ये elocution सीखने का क्या पर्पस हुआ? And How could dancing learn a gentleman of me? और दूसरा, डांसिंग कैसे मुझे एक जेंटलमैन बना सकती है, एक सिविलाइज इंसान बना सकती है। द वायलिन आई कुड लर्न इंडिया, वायलिन में इंडिया में सीख सकता हूँ। I was a student and ought to go on with my studies. मैं एक स्टूडेंट हूँ and I should focus on my studies. I should qualify myself to join the Inns of Court and I should work hard so that I could join Inns of Court. I should concentrate on my studies. If my character made a gentleman of me, so much the better. अगर मेरा कैरेक्टर मुझे जेंटलमैन बना सकता है तो ठीक है, अदरवाइज आई शुड फॉरगो द एम्बिशन, अदरवाइज मुझे ये एम्बिशन, ये ख्वाहिश छोड़ देनी चाहिए। These and similar thoughts possessed me. यही सब thoughts थे मेरे दिमाग में and I expressed them in a letter which I addressed to the elocution teacher, requesting him to excuse me from further lessons. यही थॉट्स मैंने लेटर में लिखे और वो लेटर एड्रेस किया एलोक्यूशन टीचर को और उनको रिक्वेस्ट किया कि मैं फर्दर लेसन्स नहीं ले पाऊँगा। I had taken only 2 or 3. मैंने 2 या 3 लेसन ही अभी तक लिए हैं। I wrote a similar letter to the dancing teacher and I went personally to the violin teacher with the request to dispose of the violin at any price it might. उसके बाद मैंने डांसिंग टीचर को लेटर लिखा, फिर मैंने वायलिन टीचर को पर्सनली रिक्वेस्ट किया कि मेरी जो ये वायलिन है ये आप रीसेल कर दो किसी भी प्राइस पे। She was rather friendly to me, so I told her how I had discovered that I was pursuing a false idea. वो टीचर मेरी फ्रेंड थी, तो मैंने उसे बताया कि कैसे मैं एक फॉल्स आइडिया, फॉल्स थॉट के पीछे भाग रहा था। She encouraged me in the determination to make a complete change. और उसने मुझे इनकरेज भी किया खुद में ये चेंज लाने के लिए। दिस इन्फैचुएशन मस्ट हैव लास्टेड अबाउट 3 months। और ये मेरा इन्फैचुएशन, ये जो पागलपन था, जो क्रेजीनेस थी, ये कोई 3 months चली। एंड पंक्टिलियसनेस
in dress persisted for years, and henceforward I became a student. और ये जो पंक्टिलियसनेस थी, ये जो मेरी मेटिकुलसनेस थी ड्रेस को लेकर, मेरा अपने ड्रेसिंग स्टाइल को लेकर जो क्रेजीनेस थी, ये कोई कुछ सालों तक रही, बट उसके बाद मैं एक अच्छा स्टूडेंट बन गया था. सो दिस वॉज द चैप्टर प्लेइंग द इंग्लिश जेंटलमैन. In this chapter, Mahatma Gandhi narrates one of his experiences when he was in London. I hope I make some sense to you, and thanks for patient listening. And one more thing, you can find textual exercise in description box, and don't forget to like and subscribe my channel if you like it. Thank you.